Next, we have the chief guest for today, Honorable Mr. Justice V.S. Sardana, who will be speaking on freedom of speech. To you, sir, please. Can we have a round of applause for him? Oh, all right. They can speak from there. Yeah, lovely. Number of women lawyers is no doubt still low, but not too discouraging. Summing up, Mr. This Rampal Avana, I really liked his aptitude, and I wish that you go on the way your determination is. If you go on, nobody can stop you from being a judicial officer. I wish you all the best. And he has made a point, and this is what I have been even often telling the young lawyers, that you should see, in our times, when I started practice, having a library was a big issue. Those days, if you subscribe to All India Reporter, SCC Online was in offing. That started from 1969. So I was very near to this 69 and 82. So I offered SCC to be a member of my library. And later on, when in 93, 94, when the computerization started, I was along with one of the lawyer and corporate side, Mr. Paras Quad, in Jaipur, and myself, we two were the persons who subscribed to SCC Online and computerization. So technology as and when take place, you should be ready to acknowledge it. Of course, technology, and what to talk of technology, everything has its good and bad, pros and cons. Take it from basic thing like the cooking fire. You can cook a very good tasty food, as we had a good lunch, and you can also set your house on fire by the same fire. So technology and these new things which are coming in, you should welcome them, and even if you don't welcome them, they will overtake you. So far I haven't seen anyone who could stop the changes and the progress, the way human beings are changing. So to progress, you must have your views always broad. We all are here. Are you all comfortable with my speech, or should I mix it with Hindi also? So one thing I'll advise you, before you take somebody or create an image or want to assess anybody, don't assess just what his perception is in the community or in the mind of the people. You try to know the person through his writings, through his knowledge, not what one thinks about him. I don't have, nobody can have interaction with me, because if I am known throughout the state of Rajasthan or across the country, I can't have interaction with everyone, and everyone can have interaction with me. So when they will assess me only with what are my views, what are my ideas. People know a judge through his judgments. So generally it is said judges speak through their judgments because they don't have any other forum. But I spoke even from the bar side when I was member. I practiced for 25 years before I was elevated to bench. As my friend said earlier, the bar is the breeding ground for bench. So the bar, so will be the bench. So if you want a good bench, then you have to have a good bar. And good bar will be only from the good studies, good learning. So as Gyanandaji said, that don't know the law, but know the judge. It's good on the lighter side, but I tell you, you first know the law and then know the judge.
when we were practicing, on the lighter side, we used to take, there are two categories of lawyers. One who knows the law, another who knows the judge. So if you want to be a good lawyer, I'll tell you, you know the law and know the judge later. First, know the law. And knowing the law is not a very Herculean task, it's not a rocket science. I tell you frankly, law is nothing more than common sense, which is most uncommon. Which sounds logical to you, which sounds, on any parameter, which is logical and which is rational. That is law. The lady lawyer, young lawyer, rightly said, when we talk of rights, we ignore the entire half of the population in any community, be it Gujar, Yadav, or Malis, wherever you go. The entire world, when you talk of the progress, you ignore half of the population. And without that half population, this worst half could not have progressed. The first teacher of the child is the mother. So what she teaches the child for first 5 to 7 years, it is how the child shapes for future. So the education of the women, education of the girl is primarily more important than that of a boy. As I know, the lawyer rightly said, in the evening the daughter will be told, don't go out, it's 6 o'clock, be here, because your brother is out. So as you tell them, tell your son also to behave properly. And I don't know why these things happen. Which of the family doesn't have a mother? Anybody who has taken birth must have had a mother, a sister. Then how you can behave in a manner so rude, so illegal, so brutal to another woman in the society? This all happens because we take certain things for granted. We appreciate a lot about the UK and USA. Everybody is now flocking to USA, UK because better chances, better avenues there. Why? Because what we have done to education and the teaching system in this country. When we say something, people would start judging. Oh, he's from that party or he's from that party. See, I'm telling you something from my experience. In this country, after independence, the first generation was educated only in government schools. Private schools were not very much predominant those days. The first generation of common men in this country, that was out of the government schools. My father studied in a government school in a village which had no school higher than 5th standard. After his 5th standard, he had to shift to district Morena, where it was a higher secondary school. From Morena, there was no college. He had to go to Gwalior. From Gwalior, for his PhD, there was no good institutions. After MSc, he submitted his PhD project to world's best agriculture university, Ohio State. And he was given preference there. His project was accepted. And on the basis of government scholarship, he did his PhD from Ohio State Agriculture University, Columbus. So it's not that in those days, the education system was so bad. It was gradually things deteriorated. And ultimately it came to a stage where everything was put into a mess. So after that, what happened now? See, we had very good education institutions of higher learning. We had very good IITs, IIMs after independence. And those IIMs, the IITs, the students from this country, they made their future, they made their mark abroad. But now what is the stage today?
40% of vacancies of professor and lecturers are lying vacant in this IIM and IITs. 40%. Now what kind of students we are going to produce? So these are the things which we must ponder about it. And for progress, I bet and I guarantee you, a quality education is the only roadmap which can take you to success in your life. See, just earning and making money, that's not the purpose of education. Education means to examine your life. Why you are here? We are in a society. What is going around now? With the advent of technology and internet, now the entire globe is a village. It's a global village we are living in. In our days, I tell you, 1982, 83, when I started, having a telephone, corded one, used to be a luxury. And there was a black on that telephone as good as 35,000 if you want a telephone out of way. And now today, everybody has 2-3 numbers in the cell. Where we have reached from where? This was only technology that has brought in. But what we are doing now, we are regretting now. Now we are trying to find science in Gobar and Gomutra. That has its own, you see. I tell you, to be a lawyer or to be a doctor is not that tough, but to be a human being and to be a good person is even difficult than that. I have seen many doctors, many professors. They might be doctors, they might be professors, but when you talk to them and you examine them on a pedestal of a human being, you find I found them zero, not even better than a laborer. A laborer had better aptitude about life and society than a doctor or a professor. So unless you read, when I study, see, I did my BSc because my father wanted to be a scientist as he was. But for some reasons, when I examined his way of working and his service career, and what kind of problems he faced, I decided never to be in a government service. So after BSc, I switched on to law. And my father was very angry that day. In the evening at dinner table, when I informed him, now I am going to put an end to my studies in science, he was very angry. But then he asked me, what are you going to do then? Unless you study, you can't make life. I said, no doubt. I'm going to study, but I'm not going to study science. I'm going to study law. I'll be a lawyer. I'll work. And I want wages and result according to my labor I put in. क्योंकि मैं उसमें भरोसा नहीं करता कि कर्म किया जाओ, फल की चिंता मत करो. मुझे तो फल की भी चिंता है. और अगर आप सही फल करेंगे, अगर सही कर्म होगा, तो आपका फल आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो डेफिनेटली आपके पास आएगा. अबाना ठीक कह रहे थे, आप अपने आप को टॉप के ऊपर रखने के चलिए. लॉयर तो आप हैं ही. Why can't you be a judge? And even if you don't want to be, then try it out. And even if you are successful, you can resign and say, and you can be an example to others. Say, look, I was selected, but I have resigned and I am practicing as a lawyer. But if you can't have it, then don't say, I don't want to be. वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं. तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है. आप चाहे ट्रैश पढ़ लीजिए, कानून की किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपको आगे जाना है, द वॉट एवर यू फील्ड टेक अप.
हमारे यहाँ एक वो रावत मिष्ठान भंडार वाला है, अगर आपने नहीं जाना होगा तो आज मैडम द वन हु इज़ होस्टिंग डिनर टुडे, आई आस्क हिम कि वो उनकी कचौरी ज़रूर खिलाएं आपको। उसकी फेमस कचौरी है मावे की, रावत वाले, पोलो विक्ट्री। तो वो कचौरी ऐसी बनाता है कि उसके मुकाबले की कचौरी कोई नहीं बनाता। तो मैं आपसे कहना वो चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें ऐसा करिए कि फिर आपके मुकाबले का कोई नहीं हो। तो जब आप वकील बन के खड़े हों कोर्ट में, तो ऐसा वकील खड़े होकर करिए कि जो आप बोलें, जो आपने जज को कहा, उसके आगे कुछ नहीं है और उससे पीछे कुछ नहीं है। वही अल्टीमेट लॉ का इंटरप्रिटेशन है जो आपने बताया है, और वही लॉ है। जज आपको देखिए, हर लॉयर जो है आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सब लॉयर पढ़ते हैं। फिर आप में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जिसके लिए जज आपको सुने? वो एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, और वो एक्स्ट्रा आपके पास आता है आप एक्स्ट्रा रीडिंग करने से। आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किताबें पढ़िए, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर किताबें पढ़िए, आप सोसाइटी के अलग अलग सोसाइटी के स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पढ़िए, आप सोशोलॉजी के ऊपर पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़िए। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो कि इररिलेवेंट हो। हमने उसको बांट दिया है, ये साइंस स्ट्रीम है, ये लॉ स्ट्रीम है, ये आर्ट्स की स्ट्रीम है, ये कॉमर्स की स्ट्रीम है, लेकिन एक दूसरे से इतना इंटरलिंक्ड हैं कि हम एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने जब साइंस करके बाद मैं कॉलेज में गया तो, और मेरे जो दूसरे कलीग्स थे जो आर्ट्स में थे, कॉमर्स में थे, जब वो बाद उनसे इंटरेक्शन होता था मुझे लगता था मैंने कि जिसने साइंस नहीं पढ़े उसने तो कुछ नहीं जाना ज़िंदगी में। उसको यही नहीं मालूम कि हम कैसे आए इस दुनिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेल कैसे होता है, हम कैसे पैदा होते हैं, हमारा शरीर कैसे बनता है, डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे होता है। एक सेल होता है, एक सेल से हम बनते हैं, बनते बनते हमारे कुछ उसी सेल में से कुछ हड्डियाँ बना देती हैं, कुछ हमारी स्किन बनाती है, कुछ हमारे नाखून बना देते हैं। सच ए वंडरफुल जर्नी, क्या साइंस है। और इन आदमी को यही नहीं पता ये शेक्सपियर को भी पढ़ के खुश हो रहे हैं, या फिर कॉमर्स वाले जो है वो अकाउंट्सिंग को लेकर खुश हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने लॉ पढ़ा, जब सोशोलॉजी पढ़ी, जब इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया को जाना, तब मेरे समझ में ये आया कि सिर्फ साइंस से ही नहीं, अगर आपने कॉमर्स नहीं जाना तो कुछ नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गरीब है, और गरीबी सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में, चाहे कहीं भी चले जाइए। तो इकोनॉमिक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होता बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्ट्स में हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अरे जिन्होंने किया वो कर गए, आप क्यों पढ़ रहे हैं उसको। पढ़ते पढ़ते एक बार अंबेडकर जी का एक कोट पढ़ा, दोज हु डोंट नो हिस्ट्री दे डोंट क्रिएट हिस्ट्री। पहले तो मैंने पढ़ा कोट, मैंने कहा ये इतनी गहरी बात कही किसने। बाद में देखा तो डॉक्टर अंबेडकर ने। जब स्टूडेंट था लॉ का तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे अंबेडकर, इतना ही पढ़ा। लेकिन बेंच में आने के बाद थोड़ा टाइम मिला तो अंबेडकर को जितना पढ़ता गया उतना अंबेडकर में डूबता गया। एंड अल्टीमेटली मैंने ये जाना कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति इस देश में तो नहीं हुआ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति का अनावरण किया उस टाइम पे बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का असेसमेंट किया कि इस यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़े हुए लड़के हैं, हमारे यहाँ से जो बच्चे आगे गए, उनमें से ऐसे कितने हैं और कौन हैं जिन्होंने ह्यूमन लाइफ के ऊपर इतना असर डाला हो, उतना इम्पैक्ट किया हो जिसको लोग बाग आज फील करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर वॉज एट नंबर 1। उनकी स्पीचेस पे, उनकी राइटिंग्स पे आज भी वहाँ रिसर्च चलती है। सोसाइटी को आज भी उनके नज़रिए से देखा जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके इकोनॉमिक्स में डीएससी किया, डॉक्टर ऑफ साइंस, नॉट ओनली पीएचडी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सिर्फ पीएचडी थे. ही वॉज डीएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. 1923, 2023 already gone, 102 years. No Indian has been able to achieve that distinction. उसके कितने क्राइटेरियाज में आप जाएंगे. उनकी एक स्पीच है जिसको पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले. अब तो आप लकी हैं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है. एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश. ये कोई किताब नहीं है, इसको बाद में उन्होंने छपवा लिया था. इनफैक्ट ये एक स्पीच है जो 1936 में उन्होंने लिखी थी, क्योंकि हमारे समाज में हम किसी भी चीज़ को जो बुरी सी बुरी हो उसको अच्छा नाम बहुत अच्छी तरह दे देते हैं. हमें औरतों को, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है तो उनको कहेंगे अरे हमें उनकी बहुत चिंता है, घर में नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि उनको बाहर जाने से रोकना है. लड़की को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, शादी हो जाएगी. वो बच्ची सही कह रही थी, अरे शादी हो जाएगी तो इसका जीवन खत्म हो जाएगा, शादी के बाद तो उसका जीवन शुरू होगा. तो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो क्या बच्चे को क्या पढ़ाएगी लिखाएगी. तो वो भी यही काम करेगी कि अपनी बच्ची को आपने नहीं पढ़ने दिया, वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ने देगी, क्योंकि उसकी समझ में तो उसको ये जो बताया गया वही सही है. और वैसे ही एक के बाद एक हमारे जनरेशन अनपढ़ होती जाएंगी. 1848 में ज्योतिराव फुले जो माली समाज से आते थे, उन्होंने पहला स्कूल खोला 1848 में, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए. वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए थे. अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए तो वहाँ से उनको कहा कि भाग जाओ यहाँ से, आपकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम है वो दूषित हो रहा है, क्योंकि तुम शूद्र हो और शूद्रों का हमारी शादी में यहाँ कोई काम नहीं है. उन्होंने आके अपने पिताजी से पूछा कि ये शूद्र कौन होते हैं. उन्होंने उनको सारी स्थिति बताई, वर्ण व्यवस्था बताई. तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन मुझे इतना पढ़ना है कि ये जो तथाकथित ज्ञानी हैं इनसे ज़्यादा मैं पढ़ सकूँ. पढ़ाई उन्होंने की. स्कूल पहला बच्चियों के लिए खोला. उनकी उम्र उस वक्त 21 साल थी. समाज के ठेकेदारों ने उनके पिताजी को समझाया कि ये देखिए अधर्म का काम कर रहा है, धर्म के विरुद्ध है, शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है. तो उसके पिताजी ने कहा कि ये धर्म का काम विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उसको बंद कर दो. वो नहीं माने. तो फिर अंत में उनके पिताजी को ये कहना पड़ा कि ज्योतिराव या तो स्कूल बंद होगा या फिर घर में रहोगे. तो ज्योतिराव फुले ने 21 साल की उम्र में अपनी पत्नी से कहा कि हमारा वक्त इस घर में पूरा हो गया, चलिए यहाँ से. वो घर छोड़ के चले गए, लेकिन स्कूल बंद नहीं किया. सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका थी जो घर से पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी तो 2 साड़ी लेके चलती थी, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, क्योंकि धर्म विरुद्ध काम कर रही हैं. तो वहाँ जाके साड़ी बदलती, बच्चों को बदल के पहन के फिर घर आती थी. ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में, उन्होंने जो है शूद्र समाज में पढ़ने की अलग जलाई थी. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके नायक कौन है और हमने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, आज हम कहाँ हैं. माता पिता का कहना माना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हर पिता हर बेटे को अपने जो कहा वो मान रहा होता तो आज हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते. कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा जो है अंग्रेज़ों की खिलाफत करे और फांसी चढ़ जाए. आज भगत सिंह की बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन भगत सिंह के बारे में पढ़ता कोई नहीं है. आप इनसे यहाँ कितने जिन्होंने भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी है? भगत सिंह का नाम आता है तो सिर्फ यही है कि एक आदमी बंदूक लेके निकला है और अंग्रेज़ों को गोली मारने के लिए तैयार है. ये बिल्कुल गलत इमेज. पढ़िए जरा आपने उसमें क्या लिखा है. हम जिस तरह से आज यहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन्होंने लाहौर में एक अपनी जो भारत महासभा थी उसका आयोजन किया
और उसमें एक तरफ झटका मीट रखा, दूसरी तरफ आपका वो जो दूसरा होता है हलाल, जिसके ऊपर काफ़ी झगड़े होते हैं, और दोनों को एक ही देग में पकवाया। हिंदू मुस्लिम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब ने बैठ के उसी में से जो है भोजन किया, सब ने वो खाया। तो उसमें झटका भी है, उसमें हलाल भी है, और किसी ने इसका ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो उनका यही कहना था कि जितने भी हम भारतीय हैं वो सब धर्म से ऊपर उठ के एक दूसरे के भाई बहन हैं। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में तो फांसी हो गई थी उनको। 16-17 साल की उम्र में वो क्या करते थे, उनकी क्या सोच थी। उन्होंने एक किताब लिखी, जो कोई मंदिरों में न जाए, घंटी न बजाए, जो तथाकथित धार्मिक नहीं हो, तो मुझे उनको राय देनी है वो भगत सिंह को जरूर पढ़ लें, क्योंकि भगत सिंह से ज़्यादा नैतिक तो कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्योंकि सर झुकाना, घंटी बजाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन क्यों नहीं झुकाना है, क्यों नहीं बजानी है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, उन लोगों से बहस करनी पड़ेगी, और ये जवाब देने के लिए, ये बहस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीवन में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में आपको अगर अपनी उन्नति करनी है और सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम किसी भी भाषा की ये नहीं कहते ये अच्छा ये बुरा है। भाषा का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक है, वो है कम्युनिकेशन का माध्यम। हम अपनी बात को कह सकें, दूसरा हमारी बात को समझ सके, चाहे वो आप लोकल भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। लेकिन आपको ये देखना है कि आज विश्व की भाषा क्या है। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश टुडे। चाइना ने इतना आगे प्रोग्रेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और वही इंटरेक्शन कर करके आज वो कई बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जिसमें जो विकसित देश हैं उनकी बराबरी कर रहे हैं। तो वो सिर्फ लैंग्वेज से हुआ। जब तक उन्होंने भाषा सिर्फ अपनी ही रखी और इंग्लिश को नहीं आने दिया, तब तक वो हमेशा पिछड़ते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंग्रेजी सीखना और उसको जानना मान लिया, तब से उनके साइंटिस्ट, बाहर के जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं, जापान के हैं, जर्मनी के हैं, उनसे इंटरेक्शन शुरू हो गया। इंटरनेशनल जितने भी नेचर के बुक्स हैं जिसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट आपके डिस्कवरीज, लेटेस्ट इन्वेंशंस जो छपते हैं, वो सब इंग्लिश में है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इंग्लिश में आते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएंगे, कि जजमेंट आपकी समझ में नहीं आएगा, तो जो चीज़ आप नहीं समझेंगे तो जज को क्या खाक समझाएंगे। इसलिए इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश खुद पढ़िए, खुद समझिए, और अपने बच्चों को तो ज़रूर समझाइए। मैंने कई नेताओं को जानता हूँ, मैंने कई नेता देखे हैं जो हिंदी का तो नारा लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी के पढ़ने के लिए यूएस भेज देते। धर्म के नाम पे जो जहाँ पे, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, जो सारा पैसा एक समाज से इकट्ठा आ रहा है धर्म के नाम पे, आप पता कर लेना उनके बच्चे यूएसए या यूके में पढ़ रहे होंगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ये ज़रूरी है आपके प्राइमरी लेवल पे। देखिए, बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आती, उसको, बच्चे को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ हम बड़े हैं, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम उसको छोड़ देते हैं, कह रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बस का काम नहीं है, छोड़ दीजिए। तो बच्चा अगर 4-5 साल का है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो उसको छोड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन होगी जब पढ़ाने वाला ऐसा होगा कि बच्चे को उसकी उम्र के साथ से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से अगर पढ़ाया जा सकता है तो वो उसका मन उस चीज़ में लगेगा, वरना उसको छोड़ेगा। इसके लिए मैं आप सबको बता देता हूँ, एक फ्री साइट है, बच्चों को ज़रूर बताइएगा। एक मिस्टर सलमान खान हुए थे,
एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सलमान खान थे जो यूएसए चले गए, और यूएसए जाके गरीब घर से थे, तो उनका यही पर्पस रहा कि मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ तक आ गया, मैं पढ़ लिख गया, तो कम से कम मेरे समाज के या पूरे देश के जो भी किसी भी समाज के गरीब बच्चे हैं वो अच्छे पढ़ लिख जाएं, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए। तो उसने एक यूट्यूब पे अपने कज़िन्स को मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करना लेक्चर देके यूट्यूब पे भेजना शुरू कर दिया। बिल गेट्स ने देखा कि उसके बच्चों के ग्रेड्स एकदम से इम्प्रूव हो गई, तो उसने बिल गेट्स ने अपने बच्चों को बुलाया, पूछा उनसे कि तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे इम्प्रूव कैसे हो गए। तो बच्चों ने बताया कि हम यूट्यूब पे ये मिस्टर खान है, सलमान खान, उसके लेक्चर्स देखते हैं, उससे हमारे समझ में आता है और हमने इम्प्रूव किया है। बिल गेट्स ने सलमान को फ़ोन किया, तो उसने अपनी स्पीच में कहा, सलमान ने, कि मुझे तो दिन में तारे नज़र आ गए कि बिल गेट्स ने फ़ोन करके पूछा है कि बिल गेट्स वांट्स टू टॉक टू यू, व्हाट टाइम विल बी कन्वीनियंट मिस्टर सलमान। तो सलमान ने बात की, बिल गेट्स ने कहा कि ये आपका पर्पस है एजुकेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एनीवेयर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अच्छा है एंड आई वांट टू फंड इट। बिल गेट्स ने उसमें फंड किया और उसने एक ऐप बनाई है, खान एकेडमी। दिस इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ऑन वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट यू वांट टू डाउनलोड इट। और एक आता है खान किड्स, विच इज़ फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रंस, बेबीज़। तो इनको दीजिए, क्योंकि ये जो लेसन्स तैयार करते हैं उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक डॉक्टर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जो बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि किस उम्र साल, कितने साल के बच्चे को कौन से स्टैंडर्ड के लेसन को किस तरह से पढ़ाया जाए तो वो आसानी से उसको समझ सकेगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि कुछ भी हुआ, एक टीचर भेज दिया, बीएड है, बस हो गया। तो ये फ्री ऐप्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, इससे बच्चों को आप पढ़ाइए। खान एकेडमी में तो आपके साइंस का जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए भी लेसन्स तैयार कर रखे हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सिलेबस के हिसाब से और भी ज़्यादा उसको रिफाइन कर रखा है। उसने अलग से कॉलम रखा है फॉर इंडिया। तो इन ऐप्स की मदद से अपने बच्चों को एम्पावर कीजिए, क्योंकि सरकारों से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ नियर फ्यूचर में क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ हो पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों को दीजिए, टेक्नोलॉजी को आप खुद लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रही है, इससे आप खुद भी जान सकते हैं, बच्चों को भी बढ़ा सकते हैं। मैंने तो खुद इसमें जो है एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जब चैट जीपीटी आया था। मैंने फ्रैक्शंस का जो है एक क्वेश्चन डाल के देखा, मल्टीप्लाई 1/8/155 एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। चैट जीपीटी ने उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बता दिया। तो जब ऐसी चीज़ें हमारे पास आज अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो हमें स्कूलों के चक्कर में और उसके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इन चीज़ों को अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जहाँ भी आप लाइब्रेरी बनाते हैं, जहाँ भी आप, क्योंकि आप एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स ऐसे हैं, ऐसा वो कंपोनेंट है जो सोसाइटी में हर वॉक ऑफ लाइफ से इंटरेक्शन होता है। आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, आपके पास क्रिमिनल्स भी आएंगे, आपके पास हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आएंगे। तो इन चीज़ों को आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, आपका परिवार का डेवलप हो जाएगा, परिवार डेवलप हो जाएगा, आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो आपका स्टेट डेवलप हो जाएगा, स्टेट डेवलप हो जाएगा तो नेशन अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का जो कहना था कि आपो दीपो भवो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। आप अपने आप को एम्पावर कर दीजिए, अपने आप सोसाइटी एम्पावर हो जाएगी, अपने आप देश एम्पावर हो जाएगा। ट्राई टू हैव अ ब्रॉड बेस अंडरस्टैंडिंग। किसी के भी बारे में, आप किसी से अगर कोई बिजनेस करते हैं या आपको मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है और वो आपको डॉलर में पैसा देता है, तो आप उसका केस नहीं लेंगे या डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो इंडियन मनी रुपये ही लूँगा। आप तो डॉलर भी ले लेंगे, येन भी ले लेंगे, दिनार भी ले लेंगे, जो भी मिलेगा वो लेंगे।
तो अच्छी बातें चाहे वो कुरान से मिले, चाहे बाइबल से मिले, चाहे ज्योतिराव फुले से मिले, चाहे डॉक्टर अंबेडकर से मिले, चाहे विजय सिंह पथिक से मिले, चाहे सरदार पटेल से मिले, कहीं से भी मिले, उनको ले लीजिए, क्या बुराई है उसमें। आपके नायक कौन है इनको जानना पहचानना शुरू कीजिए। आप विजय सिंह पथिक को पढ़िए, सरदार पटेल को देखिए, ही वॉज अ लॉयर बेसिकली। कोई केस आर्ग्यू कर रहे थे, साथ में एक टेलीग्राम आया, जेब में रख लिया। केस में बहस करने के बाद, क्रिमिनल केस था, एक्विट करा लिया अपने क्लाइंट्स को, उसके बाद में जाके जेब में हाथ से निकाला टेलीग्राम, पढ़ा तो पता चला उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो डेडिकेशन रखिए। इसलिए जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए। अगर आपने कानून की पढ़ाई चुनी, आपने कानून में अपना करियर चुना है, तो मेरा कहना है आप यू स्लीप विद द लॉ, यू वेक अप विद द लॉ, यू ईट लॉ, यू ड्रिंक लॉ, वट एवर यू डू सी अ लॉयर्स एंगल इन दैट। तब आप जो है अच्छे लॉयर बन पाएंगे। और जैसा रणपाल ने आपको एडवाइस किया है, अच्छी स्टडी कीजिए। जुडिशल ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं, हायर जुडिशल के एग्ज़ाम हैं, वो दीजिए, उनकी तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे जज नहीं बन पाए या जज भी नहीं बन पाए तो अच्छे वकील ज़रूर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं भी देता हूँ आपको। टाइम कॉन्स्टेंट हैं, बाकी मैं आपसे और भी विषयों पे बात करना चाहता था, क्योंकि आपके प्रोफेशनली तो जो कुछ आप जानते हैं, मिस्टर रवाना तो अपना मुझे बताया गया यूट्यूब भी चैनल भी चलाते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू हिज चैनल। आपको डिजिटल एविडेंस के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। और हमें अपने आपस में जो है, आप इतने लॉयर्स हैं, कौन किस फील्ड में है, आपस में जो है एक स्टडी सर्कल बना लीजिए किसी भी टॉपिक पे जो आपका एक्सपर्टीज़ है। मिस्टर हंस को अगर कॉर्पोरेट में है, आप कॉर्पोरेट बारे में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक अपना स्टडी सर्कल बना के संडे को, सेकंड सैटरडे को अपना एक टाइम रख लीजिए और 1 घंटे का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाए, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाएं, वो एड्रेस कर लें। व्हेन आई वाज अ लॉयर आई स्टार्टेड दिस कंसेप्ट। उस टाइम में तो ये मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो मैंने एक स्टडी सर्कल बनाया। तो उसमें हम जाके, मैंने कहा वैसे तो जज हमें कैसे जानेंगे, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हमारा एक ग्रुप था करीब 20-25 का छोटा सा। तो उस ज़माने में उसमें से हम 4 लॉयर्स जो बेंच तक पहुंच गए, तो हमने ये किया कि जो जज जिस फील्ड का हुआ करता था, जैसे सर्विस लॉ में पहले यहाँ पे मिस्टर जस्टिस S.C. अग्रवाल थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो हमने एक स्टडी सर्कल बनाया। स्टडी सर्कल में हमारे जो क्लब था उसके मेंबर्स थे 20-25। तो एक जज को जो हम जाके अप्रोच करते थे सेकंड सैटरडे के लिए, उनको हम बुलाते थे कि सर वी वांट टू हैव ए इंटरेक्शन विथ यू एंड विल लाइक टू लर्न फ्रॉम यू, क्योंकि आप सर्विस लॉ में बैठे हुए हैं, सर्विस की बेंच है आपकी, तो हम चाहेंगे कि सर्विस लॉ में आप हमको एनलाइटन करें। और हमारे जो ग्रुप के कुछ ब्रदर एडवोकेट्स हैं जो सर्विस लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी क्वेरीज आपसे पूछ लें। वो आते थे हमारे साथ, 1-2 घंटे बैठते थे और हम उनसे पूछते थे कि व्हाट ए जज वांट्स फ्रॉम ए लॉयर। तो आपस में इंटरेक्शन होता था, वो बता देते थे कि हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, हाउ ए लॉयर शुड आर्ग्यू, हाउ ही शुड कम, हाउ ही शुड पुट अप हिज केस। नेक्स्ट सैटरडे को हमने क्रिमिनल साइड में जो जज साहब बैठे हैं उनको इन्वाइट कर लेना है। उसके बाद में अगर कोई कॉर्पोरेट साइड में जो है, पहले कंपनी जज हुआ करते थे, उसके बाद अब तो NCLT आने के बाद में बंद हो गया, तो पहले कंपनी जज हुआ करते थे, उनको इनवाइट कर लेते थे। तो वो इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। हमेशा अपने से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनका साथ रखिए एंड कीप अ गुड कंपनी, क्योंकि वो मेरी नानी कहा करती थी बहुत उस टाइम पे। तो अब वो ऐसा है कि आप जैसे कंपनी में रहोगे वैसे ही रहेंगे। तो आपकी कंपनी अगर अच्छी होगी, सो कीप ए गुड कंपनी। वो कहावत है ना कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक इट टुगेदर। तो अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कीप ए गुड कंपनी एंड उसमें आपके सीनियर हों ज़्यादा बेटर है।
मैं जब बीएससी में था तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स एमएससी वाले होते थे, उसका रीज़न यही था। मैंने कहा जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो तो उतना ही बताएंगे जो मुझे पता है। मुझसे अगर ज़्यादा जानना है तो अपने से हायर क्लास वाले के साथ बैठो। तो एज ए लॉयर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानना है तो आपसे जो सीनियर हैं, जिनकी अगर आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है तो आप 20 साल वाले के साथ बैठिए, तो यू विल हैव एडिशनल 10 years एक्सपीरियंस in the 11th year only. So you will be after 2 years equivalent to 20 years practice. तो ये रखिए। देन हमारे जो एक गुरु थे वो कहा करते थे कि ड्रेस वेल एंड एड्रेस वेल। सो एज मिस्टर खारी mentioned, so when you are a lawyer you should behave like a lawyer, you should look like a lawyer, your behavior, your disposition should be like a lawyer. So dress well and address well. तो आपका जब तक ये सारे पोजीशंस में आप अपने क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं लाएंगे, until you will not be able to make a mark. और जहाँ भी जाते हैं, देखिए दुनिया में एक जीवन मिला है, अब पता नहीं आगे जन्म है या पीछे था नहीं था, मैं तो इसमें नहीं मानता। आपका यही जीवन है और ये जीवन अगर मिला है तो कहीं निशान छोड़ के जाइए, तो आने वाली जनरेशन्स आएँ तो वो देखें कि हाँ यहाँ से कोई गुजर के गया है। तो एक वो शेर जो अक्सर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप अपने आप को इतना एम्पावर करिए। आप पढ़ते हैं तो इतना पढ़िए कि आपसे बहस करने वाला ही कहेगा कि बताइए आपके क्या ओपिनियन है, मैं वही मान लेता हूँ। थैंक यू अलॉट, थैंक यू। Thank you so much, Honorable Mr. Justice Saradhana, for blessing this ceremony with your words of wisdom. Certainly this conference or any conference like these might not be sufficient to gather all the knowledge that is present here with the kind of legal numeraries that are present, but we can only try. And I should really appreciate how beautifully you have captured right from themes like annihilation of caste to why I'm an atheist in a very nuanced manner. So can we have a very huge round of applause again for him and the entire line of speakers we have today. Now I would